teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter quadratic equations. Alright. If you can recall, in the last lecture, we had done maximum and minimum value of a quadratic expression, in which we had seen that if coefficient of x square a is positive, then we have parabola opening upwards, and in that case we can find the minimum value, right? And if coefficient of x square a was negative, parabola was opening downwards, and we could obtain the maximum value. Then we had done another important thing, that when does a parabola intersect x-axis in two distinct points? It was when roots are real and distinct, that means d was greater than 0. Then what was the case when the parabola was touching x-axis just at one point? That was when roots are real and equal, that means discriminant was 0. And last case, as I told you, it was a very important case. When does a parabola does not touch or cut x-axis at any point? So if the parabola is strictly above x-axis, that means quadratic expression is always positive. Then a has to be positive and d negative. D means discriminant. And if you have parabola strictly below x-axis, that is quadratic expression is always negative, then coefficient of x square a has to be negative as well as d has to be negative. Now with this information, we are ready to start today's lecture. In this case also, we will be using mostly graphs, and then in questions solving inequalities based on that. We will be doing location of real roots of quadratic equations. Alright, so let's start. So in today's lecture, the first thing that we are going to do would be location of real roots of quadratic equation ax square plus bx and plus c equal to 0. Is it okay? So we'll be using this. Now let us denote this quadratic expression by f of x. Alright. Now let me denote this quadratic expression by f of x. So let it be a function, quadratic function. So it is ax square plus bx and plus c. Now we are talking about real roots of the quadratic equation. Now what do we mean its location? We would like to find, like on x-axis, where are the roots located if you are given say a number k. Are both roots greater than k? Are they lesser than k? Or roots lie between two numbers k1, k2? Or a given number lies between the roots? So all these cases we are going to discuss. So let me take the first case. Okay. So first case here would be, let me write case 1. So case 1 is that both roots are smaller than a number k. This would be the first case. Both roots are smaller than a number k. Alright. Now in each case we'll have two sub cases. A positive, parabola will open upwards. A negative, parabola is going to open downwards. ठीक है? पहला केस लेते हैं A to be positive. Alright? अब अगर A positive है देखो, तो हमारे पास parabola we know that is going to open upwards. Now look here. Suppose हमारे पास, just a moment. अब parabola देखो upward open कर रहा है, and we are given both roots are smaller than a number k. तो देखो क्या possibility कैसे हो सकती है. अब let me first of all take the number k. Suppose somewhere here I have a number k. Now both roots are smaller than that. That means parabola will cut x-axis before that. And since a is positive, parabola will be opening upwards. So let us take upward parabola. तो upward parabola हमने ये ले लिया. अब इस केस में देखो, I have taken two distinct roots alpha and beta. We are saying both roots are smaller than a number k. Remember, and we are talking about real roots. So we are not talking about imaginary roots. But observe one thing, one more condition is possible. What is that? Suppose I have like this. Can roots be equal also? Let's see.
Suppose again I have this as number k, alright, and I have both roots will be smaller than k. So you can see in this case roots can be equal also. Parabola is opening upwards because a is positive. We can have equal roots also, even then both roots can be smaller than a number k. So what is the first condition? In the first case, roots are distinct, as you can see over here, alpha and beta, here roots are equal. So first condition will be on discriminant, it can be greater than or equal to 0. Why? Because roots can be distinct or they can be equal. Look at the second condition now. Remember the vertex minus b upon 2a? Alright, x coordinate. Now it is going to lie over here, minus b upon 2a. In this case, this itself is the vertex. This is minus b upon 2a. Alright, alpha itself is minus b upon 2a if roots are equal. So the second condition would be that if both roots are smaller than k, then minus b upon 2a will be smaller than k. Is it alright? So this will be smaller than k. Either the roots are distinct even then, or if roots are equal even then. Now look at the third condition over here. You can observe that if both roots are smaller than k and parabola is opening upwards. So observe this thing that if x is taking values greater than beta, k will be after beta, right? Because both roots are smaller than k. So you can see after beta, parabola is opening upwards. Let me extend it a bit. Okay, as you can see, this parabola, or we can take k to be somewhere here. Suppose I have this as k. Alright. Now observe this thing, at k value of the function will be positive. F of k will be positive. Why? Because after beta you can see the graph is above x-axis. So k will be after beta, so I will have f of k to be positive. Similarly here also, suppose again let me take k to be somewhere nearer to it. Suppose I take k here, so you can see that f of k, this is f of k. Graph is above x-axis, so f of k will be positive. So these are the conditions if parabola is opening upwards and both roots are smaller than a number k. Let me see what happens when a is negative. Alright, तो second case देखते हैं. आप देखो अगर a negative है तो क्या होगा? a अगर हमारे पास negative है, a negative है तो parabola downward open करेगा. Let us draw the graph first of all. And then we will see both roots are smaller than k. तो क्या क्या conditions आती हैं हमारे पास. Alright. So let me draw the first one. Suppose I have like this. Alright. इसमें भी देखो दो cases possible है. So let me take. Like this. Alright. In this case also, roots may be distinct or they may be equal. Look here. Suppose I have this as the number k. Now a is negative, parabola will open downwards. Parabola would be like this. Got it? In this case, you can see roots are distinct. So if roots are distinct, both roots can be smaller than this number k. Roots may be equal also. See? Parabola is just touching x-axis at one point. So if you have here k, then you can see both roots are alpha, roots are equal. Even then both roots can be smaller than a number k. So what will be the conditions now? First condition here would be because roots can be distinct or equal, but they are real, so d will be greater than or equal to 0. Now look at the second one again. Again look at the vertex, x coordinate. This is the vertex. So x coordinate was minus b upon 2a. Here alpha itself is equal to minus b by 2a because roots are equal, so d is 0. Alright. So second condition would be, as you can see, minus b upon 2a will be smaller than k. This is the second condition. Alright. Now the third condition. You can see here after beta, see here, graph is below x-axis, this part. So what k is now after beta because both roots are smaller than k. So wherever k is, at k value of the function will be negative. Alright. So this f of k will be negative. Similarly here,
f of k would be negative because graph is below x-axis. So that gives it, that gives my third condition, which is that f of k in this case is going to be negative. Now let us compare the two conditions. Okay, in the first case d was greater than or equal to 0, case 2 also when a is negative we have the same thing. All right, minus b upon 2a less than k, same here. The only difference is in the third condition, that f of k is positive if parabola is opening upwards and f of k is negative when parabola is opening downwards. Now how can we write combined conditions? That means conditions which will serve both the cases, a positive and a negative. So let's see how can we write combined conditions. First condition, all right, would be that d is greater than or equal to 0 because it is the same. Look at the second one, minus b upon 2a less than k. ये भी सेम हो गई क्योंकि दोनों केसेस में बेटा सेम है. अब तीसरी देखो जरा ध्यान से, आप ऑब्जर्व करो कि अगर हमारे पास a पॉजिटिव है और f of k भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा a इंटू एफ ऑफ k वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. अब सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में आप ऑब्जर्व करो a नेगेटिव है और f ऑफ यहाँ पे k भी क्या है, नेगेटिव. लुक है, f ऑफ k इज ऑल्सो नेगेटिव. तो अगर दोनों नेगेटिव है तो भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया ना, तो बस हमें कंबाइंड कंडीशन मिल गई. तो कंबाइंड कंडीशन तीसरी हो गई, विच विल सर्व बोथ द केसेस, is a into f of k will be positive. If a is positive, f of k has to be positive for product to be positive, और अगर a negative है तो f of k को भी क्या होना पड़ेगा, negative होना पड़ेगा. तो I hope पहला केस आपको क्लियर हो गया. Alright, पहला केस क्या था देखो, when both roots are smaller than a number k. अब हम इसका केस 2 करते हैं, when both roots are greater than a number k. एक बार ये केस समझ लो ना, तो आपको पता है ग्राफिकली आप कंडीशंस भी खुद ही लिख सकते हो. अब आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे कर रहे हैं आप खुद ही कंडीशंस लिखनी शुरू कर दोगे. ओके, इट्स जस्ट द फर्स्ट केस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, रेस्ट विल फॉलो लॉजिकली. नाउ लेट मी टेक केस 2. केस 2 लेते हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर k. सो केस 2 क्या है हमारा, केस 2, बोथ रूट्स आर greater than a number k, right? And again we have to take two cases, either a will be positive or a will be negative. Let me take a to be positive. a positive है, तो देखते हैं इसमें ग्राफ बनाते हैं. Look here, suppose I have this, इसमें भी देखो एक और केस बनेगा. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द एक्सिस. नाउ लुक हियर, वी हैव बोथ रूट्स ग्रेटर देन अ नंबर k. सपोज ऑन द नंबर लाइन समवेयर हियर आई हैव k. नाउ a इज पॉजिटिव, पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स, सो आई कैन हैव माय पैराबोला लाइक दिस. इस तरह से बन सकता है. तो यू कैन सी इन दिस केस आई हैव टेकन डिस्टिंक्ट रूट्स. मैंने डिस्टिंक्ट रूट्स लिए तो दोनों रूट्स क्या हो गए, ग्रेटर देन अ नंबर के. अब या ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारे पास k हो गया. अब देखो दोनों रूट्स k से बड़े हैं, तो अगर हमारे पास रूट्स इक्वल हो जाएं तो भी तो पॉसिबल है कि दोनों रूट्स k से बड़े हो गए, अल्फा और अल्फा. सो रूट्स कैन बी डिस्टिंक्ट और रूट्स कैन बी इक्वल. दैट गिव्स अस आवर फर्स्ट कंडीशन, दैट d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स डिस्टिंक्ट है ना, d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल. नाउ ऑब्जर्व द वर्टेक्स. उसका x कोऑर्डिनेट क्या था वर्टेक्स का, माइनस b अपॉन 2a. यहाँ पे तो रूट्स इक्वल है तो d 0 होता है तो अल्फा ही होगा माइनस b अपॉन 2a बेटा. एंड यू कैन ऑब्जर्व इन बोथ द केसेस माइनस b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन k, राइट. सो सेकेंड कंडीशन इज दैट माइनस b अपॉन 2a will be greater than k. Now look at the third condition. अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि अल्फा से पहले ग्राफ इज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस. तो अगर दोनों रूट्स k से बड़े तो k अल्फा से पहले होगा ना,
तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कहीं भी बेटा k लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी ना। देखो एफ ऑफ के विल बी पॉजिटिव क्योंकि ग्राफ ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे देखो अल्फा से पहले हमारा जो ग्राफ है दैट इज अबव एक्स एक्सिस, तो के अल्फा से पहले होगा तो वहां पे कहीं भी होगा तो आपके पास एफ ऑफ के क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो थर्ड कंडीशन इज इन दिस केस दैट एफ ऑफ के विल बी ग्रेटर देन 0। गॉट इट? So these are the conditions if a is positive, parabola is opening upwards. Now let me take what happens when a is negative. All right? तो हम अगला लेते हैं a अगर negative. All right? ये a negative हो गया। तो let us draw the graph now. All right? अब इसमें देखो पैराबोला आपको पता है कैसे ओपन करेगा बेटा, डाउनवर्ड्स ओपन करेगा। तो इसमें भी because two cases are possible. All right? So let me take. Let us draw the axis. Again we have to take two cases. Now parabola is opening downwards and both roots are greater than a number k. Suppose I have k somewhere here. Now parabola is opening downwards and I have both roots greater than k. So if the roots are distinct, these are the roots alpha and beta. Now or possibility is that roots may be equal also. Look here, if this is k, if the roots are equal, parabola will be touching x-axis at one point. So these are the two roots alpha comma alpha. So both roots are greater than a number k. Now again, since roots can be distinct or they can be equal, so first condition here would be that d is greater than or equal to 0. Now look at the second one. As you can see, the turning point. This is the vertex or the turning point of the parabola. You can see this is minus b upon 2. Alright. And here roots are equal, d is 0. So alpha itself is minus b upon 2. And you can clearly see from both the graph that minus b upon 2a is greater than k. तो k से बड़ा है। अब third condition देखो। Before alpha you can see graph is below x-axis. है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, यहां भी और यहां पे भी ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब k पे बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, बिकॉज अल्फा से पहले कहीं भी k होगा क्योंकि दोनों रूट्स हमारे k से बड़े हैं। तो f ऑफ k विल बी नेगेटिव इन बोथ द केसेस। सो आई हैव दिस कंडीशन नाउ थर्ड दैट f ऑफ k विल बी लेस देन 0। Now let us compare these two cases, a positive, a negative. You can see the first two conditions are the same. What are they? D greater than or equal to 0 and minus b upon 2a greater than k. These two conditions are the same. So when I write the combined conditions over here, let us write combined conditions. Alright. Now first two conditions are going to remain the same. So first condition is that d is greater than or equal to 0. Second condition is that minus b upon 2a is greater than k. Now let us see the third one. In the third one we have, what is the third one? That if a is positive, you can see if a is positive, I have f of k positive. So just like in the previous case we had done, that if a and f of k both are positive, the product will be positive. Got it? And in the second case, as you can see, a is negative. See here, a is negative. a negative है और देखो f of k भी negative है। दो negative quantities का product भी क्या होता है, negative होता है। तो a into f positive होता है। तो अगर a negative है, f of k भी बेटा negative है, तो product positive हो गया। उसमें भी positive था। तो third हमारी combined condition ये आ गई। We can write that a into f of k will be greater than 0. तो अगर a आपका पॉजिटिव होगा तो f of k पॉजिटिव हो जाएगा, अगर a नेगेटिव है तो f of k will be negative, right? So this was the case when both roots are greater than a number k. All right? तो ये वाला हमने सेकेंड केस कर लिया। Now let us move on to the third case. Third case होगा when both roots lie between two numbers k1 and k2. All right? Where one number k1 will be smaller than k2. So let us write case 3 now.
Let's move on to that. तो आप देख रहे हो, आप ग्राफ देख के ही कंडीशंस खुद ही लिख सकते हो. You don't have to cram the conditions, right? So that's important because there are too many cases. So case 3 would be that both roots lie between two numbers k1 and k2 where k1 is less than k2. ये कंडीशन. Is it all right? तो both roots lie between two numbers k1 and k2 where k1 is less than k2. इसमें भी देखो दो केसेस होंगे, या तो a आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. लेट मी टेक जब a पॉजिटिव है तो आपके पास यू नो दैट पैराबोला इज गोइंग टू ओपन अपवर्ड्स. ऑलराइट, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ नाउ. लेट्स सी हाउ इज दिस पॉसिबल. So let us first of all take the axis. Again, roots may be distinct, roots may be equal. So I am drawing two graphs to tell you both the cases. See here now. Suppose I have one number k1 over here, right? This is k1, and suppose here I have the other number k2. Now what are we saying? Both roots lie between two numbers k1 k2. A positive है, parabola upward होगा. So parabola would be somewhat like this. ठीक है, इस तरह से है. और आप देखो दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी है बेटा. Suppose this is k1 and this is k2. रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसे हो जाएगा. इस केस में डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और यहां पे हमारे पास इक्वल रूट्स हैं अल्फा एंड अल्फा. ऑलराइट, नाउ लुक हियर. फर्स्ट कंडीशन इज दैट रूट्स में बी डिस्टिंक्ट और इक्वल. तो पहली कंडीशन हमारी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आ गई कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ लुक एट द सेकेंड कंडीशन. लुक एट द वर्टेक्स. x कोऑर्डिनेट ऑफ एट माइनस बी अपॉन 2, राइट. और यहाँ पे रूट्स इक्वल है तो अल्फा इटसेल्फ विल बी माइनस बी अपॉन 2a. यू कैन क्लियरली सी माइनस बी अपॉन 2a कहाँ लाई कर रहा है? बिटवीन k1 एंड k2, है ना. वेदर रूट्स आर डिस्टिंक्ट और रूट्स आर इक्वल. तो सेकेंड कंडीशन हमारी हो गई. सेकेंड कंडीशन वुड बी दैट माइनस बी अपॉन 2a विल बी ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2. ओके, नाउ लुक एट द थर्ड कंडीशन. आप ऑब्जर्व करो कि अल्फा से पहले ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उस पे k1 पे भी, जैसे इन पर्टिकुलर f ऑफ k1 क्या होगा? पॉजिटिव. सिमिलरली ऑब्जर्व करो कि बेटा बीटा के बाद भी ग्राफ जो है हमारा क्या है? अबव एक्स एक्सिस है. देखो, इजंट इट? तो ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस एज यू कैन सी. तो k2 बीटा के बाद होगा ना, तो कहीं भी k2 होगा तो यहाँ पे f ऑफ k2 भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव. सिमिलरली हेयर ऑल्सो k1 पे भी बेटा फंक्शन की वैल्यू विल बी पॉजिटिव और k2 पे भी फंक्शन की वैल्यू विल बी पॉजिटिव बिकॉज ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस बिफोर अल्फा एंड आफ्टर अल्फा. सो इसमें हमारी 4 कंडीशंस हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि k1 की बात भी हो रही है बेटा और k2 की बात भी हो रही है. तो तीसरी कंडीशन हो गई कि f ऑफ k1 पॉजिटिव है. And I have a fourth condition also that f of k2 is also positive. Alright. So roots can be distinct or equal in this case also. So this was the case when a is positive, parabola is opening upwards. Now let me take this next case जब हमारे पास a negative है. a negative है तो हमें पता है parabola will open downwards. So let's draw the graphs. Again इसमें दो cases possible होंगे. So I'll be taking two graphs here because we will see that roots can be distinct or they may be equal. तो मान लो यहाँ पे हमारे पास k1 है. k1 we have taken to be smaller than k2 and this is k2, right? Now a is negative, so parabola will be opening downwards. आप एक डाउनवर्ड पैराबोला बना लो. ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बन गया. और इस केस में जैसे k1 एंड k2, राइट,
and we have a downward parabola, roots may be equal. So here roots are distinct, alpha and beta, ठीक है, और यहाँ पे देखो बेटा रूट्स क्या हो गए, इक्वल. समझ में आया? अब आगे देखो. In this case also roots are distinct or equal, so I get my first condition कि D हमारा greater than or equal to 0 है. लॉजिकल बिल्कुल, जिसमें दोनों केसेस पॉसिबल हैं, D greater than or equal to 0. अब दूसरी कंडीशन हम यूजुअली क्या ले रहे हैं हर केस में, अब तो आपको याद हो क्या होगा, वर्टेक्स की ले रहे हैं. तो वर्टेक्स की कंडीशन ले लेते हैं. देखो ये x वर्टेक्स है आपका, तो इसका x कोऑर्डिनेट -b/2 है. आप देख रहे हो ये k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे हैं. यहाँ पे रूट्स इक्वल है, तो अल्फा इटसेल्फ इज -b/2 है, तो इट इज आल्सो लाइंग बिटवीन k1 एंड k2. सो सेकंड कंडीशन हियर वुड बी दैट आई हैव कि -b/2 हमारा लाई करेगा बिटवीन k1 एंड k2. अब आप ये ऑब्जर्व करो, अल्फा से पहले ग्राफ इज बिलो x एक्सिस. कैन यू सी, दिस इज द ग्राफ बिलो x एक्सिस, और बीटा के बाद भी ग्राफ कहां पे है, बिलो x एक्सिस. तो k1 कहां होगा, अल्फा से पहले, और k2 कहां होगा, बीटा के बाद, क्योंकि दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में है. तो वेरी क्लियरली k1 पे भी आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी नेगेटिव और k2 पे भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों तरफ ग्राफ बिलो x एक्सिस है. सिमिलरली अगर रूट्स इक्वल हैं, तो ये देखो k1 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, k2 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव. तो नाउ इन दिस केस आल्सो वी विल हैव 4 कंडीशंस. थर्ड हो गई बेटा कि f of k1 विल बी नेगेटिव, और फोर्थ कंडीशन भी हमारी हो गई कि f of k2 विल बी नेगेटिव. गॉट इट? तो ये कंडीशंस आ गई. अगेन लेट अस सी, दोनों केसेस में पहली दो कंडीशन सेम है, d greater than or equal to 0 और -b/2 लाई कर रहा है k1 k2 के बीच में. तो लेट मी राइट हियर combined conditions which will serve both the cases whether a is positive or a is negative. So what are the combined conditions? First one is that d is greater than or equal to 0, and second one is that -b/2 है, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट था वो कहाँ लाई कर रहा है बेटा, k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है. थर्ड देखो, k1 पे आप देखो, यहाँ पे केस 1 में ऑब्जर्व करो a पॉजिटिव था, राइट? तो f of k1 भी पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस केस में a into f k1 is positive because both are positive. सिमिलरली a पॉजिटिव है, और देखो यहाँ पे f of k2 भी पॉजिटिव, तो इस केस में भी हमारा प्रोडक्ट a into f of k will be positive, f of k2 है ना, ये पॉजिटिव है. अब नेगेटिव वाला केस देखते हैं, जब a नेगेटिव है. ऑब्जर्व करो, ये देखो a नेगेटिव है, f of k1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a into f of k1 पॉजिटिव. सिमिलरली a नेगेटिव, f of k2 नेगेटिव, अगेन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. तो हमारे पास 4 कंडीशंस ही आ गई. थर्ड आ गई यहाँ पे कि a into f of k1 पॉजिटिव होगा, राइट? और फोर्थ कंडीशन है कि a into f of k2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. Is it okay? So these are the 4 combined conditions. All right? So you can see ये जो वाला जो केस था ना कि both roots lie between two numbers k1 and k2, एक तरह से ये प्रीवियस 2 केसेस का कॉम्बिनेशन है ना. केस 1 में क्या बोल रहे थे, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर k, और दूसरे में बोल रहे हैं बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर k. 2 केसेस ये थे, इसमें k1 k2 के बीच में है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2. नाउ लेट्स मूव ऑन टू केस 3. ठीक है, अब तीसरे केस पे चलते हैं, फोर्थ केस. तो फोर्थ केस हमारा ये है, लेट मी राइट केस 4. फोर्थ केस है कि a number k lies between the roots. So let me write fourth case is that a number k lies between the roots. रूट्स के बीच में कोई नंबर हमारा k लाई कर. अगेन लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक a to be positive. अब आप लॉजिकली सोचो,
अगर कोई नंबर हम कह रहे हैं वो लाई कर रहा है रूट्स के बीच में, तो ऑब्वियसली रूट्स इक्वल नहीं हो सकते ना, तो इसमें एक ही केस बनेगा, राइट? रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, दे कैन नॉट बी इक्वल। तो यहां पे देखो, जैसे वी विल हैव ओनली वन केस। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे a पॉजिटिव है, पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया हमारा, ओके, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। अब ये हमारे रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हम बोल रहे हैं कि इनके बीच में कहीं लाई करता है। अब देखो, बीच में का मतलब अल्फा बीटा के बीच में, बेटा कहीं भी ले लो आप उसको, ठीक है? सो सपोज आई टेक k टू बी समवेयर हियर, तो k इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो रूट्स कैन नॉट बी इक्वल। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे होगी डिस्क्रिमिनेंट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बिकॉज रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट। अब देखो, जो सेकेंड कंडीशन हम क्या लेते थे, वर्टेक्स की ले रहे थे ना, यहाँ पे वो मैटर नहीं करती, पता है कैसे, क्यों? लेट्स सी हाउ। आप नोटिस करो, जैसे ये मेरा वर्टेक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा -b अपॉन 2। अब k को ऑब्जर्व करो, हमने बोला है कि ये रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो k यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। k कैन बी एनीवेयर बिटवीन अल्फा बीटा, और -b/2 है, ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b अपॉन 2 है, ये भी तो अल्फा बीटा के बीच में है, तो k में भी स्मॉलर देन -b/2 है, k इक्वल भी हो सकता है -b/2 है, k बड़ा भी हो सकता है। तो देयर इज नो कंडीशन रिलेटिंग k टू -b अपॉन a, वो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ जो हमें कंडीशन एक मिलेगी वो ये मिलेगी यहाँ पे कि k पे देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में क्यों होगा ना, k रूट्स के बीच में, तो अल्फा बीटा के बीच में अगर ग्राफ है तो ग्राफ इज कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, तो कोई भी पॉइंट लेंगे उस पे फंक्शन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस होंगी, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, why? बिकॉज रूट्स आर डिस्टिंक्ट, और दूसरी f of k विल बी नेगेटिव। ओके, नाउ लेट मी टेक केस 2 व्हेन a इज नेगेटिव। अब हम केस 2 लेते हैं बेटा, जब a नेगेटिव है, सो a नेगेटिव। अब इसमें भी रूट्स कैन ओनली बी डिस्टिंक्ट बिकॉज k इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, ठीक है? सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। तो एक ही केस होगा इसमें जब रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। सो इस केस में क्योंकि a नेगेटिव है, पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो डाउनवर्ड पैराबोला है, और ये हमारे रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा। अब k बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है ना? नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स। सो अगेन फर्स्ट कंडीशन दैट d विल बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज रूट्स आर डिस्टिंक्ट, एंड अगेन देयर इज नो रिलेशन ऑफ k विद -b अपॉन 2a, क्योंकि ये जैसे वर्टेक्स है आपका बेटा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b अपॉन 2a, तो k जो है वो -b/2a से लेसर, इक्वल या ग्रेटर पॉसिबल, ऑलराइट? नाउ द अदर कंडीशन वुड बी कि k पे बेटा फंक्शन की वैल्यू जो मेरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि k अल्फा बीटा के बीच में है, और आप नोटिस करो अल्फा बीटा के बीच में ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है, तो कहीं भी k होगा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो सेकेंड कंडीशन इज दैट f of k इन दिस केस इज पॉजिटिव। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। पहली कंडीशन दोनों में सेम है, ऑब्जर्व करो, d पॉजिटिव क्योंकि रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब सेकेंड कंडीशन देखो, अगर a पॉजिटिव है तो f of k नेगेटिव है, अपोजिट साइन के हैं। अगर अपोजिट साइन के हैं बेटा तो a इंटू एफ ऑफ k का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। इस केस में देखो, अगर a नेगेटिव है, f ऑफ k पॉजिटिव है, अगेन देयर ऑफ अपोजिट साइंस, तो अगर अपोजिट साइंस के हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव, so here also a into f of k will be negative. So what are the combined conditions? We have just two combined conditions over here, so let us write over here. So combined condition, right? पहली combined condition हमारी हो गई कि d is strictly greater than 0 because roots can only be distinct, और दूसरी condition हो गई a into f of k is negative, ठीक है ना? तो अगर a पॉजिटिव होगा, देखो यहाँ पे ये a पॉजिटिव है तो f of k नेगेटिव हो जाएगा, और अगर a नेगेटिव है तो f of k will be positive, got it?
नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज केस 5. ठीक है, अब हम चलते हैं केस 5 पे. सो लेट मी राइट केस 5. तो 5 केसेस हैं. सो दिस इज द लास्ट केस. लास्ट केस, केस 5 है. एग्जैक्टली one root lies in the interval, या ऐसे भी कह सकते हैं exactly one root lies between the roots, between two numbers k1 and k2. तो exactly one root lies between two numbers k1 and k2, right? Where k1 is less than k2. अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ये केस हमने किया हुआ है? Let us check. Where k1 is less than k2. तो ये वाला केस हम करेंगे कि exactly one number lies between the roots. One root lies between two numbers. अब देखो, पहले हमने क्या किया था? ये वाला केस किया था कि both roots lie between two numbers k1 and k2. तो केस 3 जो था ना, उसमें किसकी बात हो रही थी? both roots. तो दोनों रूट्स लाई कर रहे थे आपके दो नंबर्स के बीच में, k1 k2 के बीच में, where k1 is less than k2. ये केस फर्क है केस 5, क्योंकि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, exactly one root lies between two numbers k1 and k2, where k1 is less than k2. So let's check the cases. आप देखो, a पॉजिटिव, तो पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स. अब एक बात नोटिस करो कि अगर एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है दो नंबर्स के बीच में, तो रूट्स इक्वल कैसे हो सकते हैं? फिर तो दोनों ही रूट्स हो जाएंगे ना k1 k2 के बीच में. तो इसमें भी रूट्स कैन नॉट बी इक्वल, रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट. सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. नाउ देखो, अब यहाँ पे let us draw the parabola. Parabola will be opening upwards, all right? क्योंकि हमारा a क्या है? पॉजिटिव. अब देखो, ये हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए अल्फा और बीटा. अब हम कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है k1 k2 के बीच में. मान लो इस केस में वो अल्फा है. तो देखो, अगर सिर्फ अल्फा लाई कर रहा है ना k1 k2 के बीच में, तो k1 कहाँ होगा? बिफोर अल्फा. और k2 को कहाँ होना पड़ेगा? बिटवीन अल्फा बीटा. क्योंकि अगर आपने k2 को देखो यहाँ पे बीटा के बाद ले लिया, तो फिर तो दोनों रूट्स हो जाएंगे k1 k2 के बीच में. तो k2 विल बी समवेयर हियर. अब आप कहोगे, मैम अगर अल्फा की बजाय बीटा हो जाए, तो लेट अस टेक अनदर केस. ठीक है, बीटा भी तो हो सकता है ना, वो रूट जो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है. तो लेट अस ड्रॉ वन मोर ग्राफ फॉर दैट. ये देखो, एक और ग्राफ लेते हैं. इसमें हम बीटा को लाई करवाते हैं k1 k2 के बीच में, और a पॉजिटिव है ना, तो पैराबोला तो अपवर्ड ही ओपन करेगा हमारा. ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. नाउ सपोज बीटा इज द रूट विच इज लाइंग बिटवीन टू नंबर्स k1 एंड k2. सो वेयर विल बी k1? अब सिर्फ बीटा है ना, तो k1 को कहीं अल्फा बीटा के बीच में होना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू टेक k1 बिफोर अल्फा, तो दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में हो जाएंगे. और यहाँ पे k2 आएगा तो बीटा लाएगा. अब देखो कंडीशंस कैसे लिखनी है. फर्स्ट कंडीशन इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो d विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. रूट्स इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली एक रूट लाई करता है k1 k2 के बीच में, तो d विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. इसमें जो वर्टेक्स है -b/2a, उसका k1 k2 से कोई रिलेशन नहीं है. k1 k2 उससे पहले या बाद में कहीं भी हो सकते हैं. अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे केयरफुल. आप देख रहे हो यहाँ पे केस 1 में जब अल्फा लाई कर रहा था, तो यहाँ पे अल्फा से पहले ग्राफ अबव है. ठीक है, तो k1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव. और k2 अल्फा बीटा के बीच में है. अल्फा बीटा के बीच में ग्राफ यू कैन सी इज बिलो x एक्सिस. तो k2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. कैन यू सी? तो f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 नेगेटिव. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव.
तो सेकेंड कंडीशन अगर मैं ये लिखती हूं यहाँ पे, सेकेंड कंडीशन वुड बी दैट f of k1 into f of k2 will be negative. Why? Again look here, k1 पे पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे देखो, ठीक है, और k2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। कैन यू सी दैट? ऑलराइट, तो ये हमारा, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ऑब्जर्व दीज 2 पॉइंट्स. सो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. Now what is happening in the other case when beta is the root which is lying between two numbers k1 and k2? तब क्या हो रहा है? ऑब्जर्व करो, k1 पे फंक्शन की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है? नेगेटिव है. ये देखो, क्योंकि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है. बीटा के बाद ग्राफ अबव हो गया तो k2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव. अगेन प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. तो दूसरे केस में भी बेटा सेम कंडीशन विल अप्लाई. ऑलराइट, कि f of k1 और f of k2 के साइन अपोजिट होंगे. अगर f of k1 देखो पहले केस में पॉजिटिव है तो k2 नेगेटिव है, और इस केस में अगर f of k1 नेगेटिव है तो f of k2 क्या होगा? पॉजिटिव. सो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. नाउ लेट मी टेक व्हेन a इज नेगेटिव. अब देखो a नेगेटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑलराइट, व्हेन a इज नेगेटिव, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ नाउ. पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड. All right, so let me draw. So पहला केस हमारा ये हो गया. Let us take the coordinate axis. इसमें भी हम 2 केसेस ले लेते हैं क्योंकि या तो अल्फा लाई करेगा, है ना, k1 k2 के बीच में बेटा, and we have to see the other case also कि what happens if beta lies. So let me take this. A नेगेटिव है, पैराबोला will be opening downwards. तो ये हमारा पैराबोला. इस केस में देखो, these are the 2 roots. केस क्या था? Exactly 1 root lies between 2 numbers k1 and k2. मान लो वो रूट अल्फा है, तो k1 k2 कहाँ होंगे? अब क्लियर आइडिया आपको कि k1 होगा मैम अल्फा से पहले आप बोलोगे, और k2 अल्फा बीटा के बीच में. बीटा के बाद क्यों नहीं हो सकता? वरना दोनों रूट्स हो जाएंगे k1 k2 के बीच में. तो यहां कहीं हमारा आएगा k2. या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे इस केस में भी आपको पता है पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. अब अगर हम ये कहते हैं कि बीटा इज द रूट व्हिच इज लाइंग बिटवीन 2 नंबर्स k1 एंड k2, सो k1 विल बी समवेयर हियर एंड अदर नंबर k2 विल बी समवेयर हियर. वो यहाँ पे हो जाएगा. अब आप देखो फिर से रूट्स इक्वल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है 2 नंबर्स के बीच में. तो सबसे पहली चीज रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो पहली कंडीशन d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब सेकंड कंडीशन ऑब्जर्व करो आप यहाँ पे कि k1 पे आप देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, और k2 पे पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस. सो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो प्रोडक्ट होगा f of k1 into f of k2 वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. दूसरे केस में देखो, f of k1 ग्राफ ऊपर है बेटा, तो f of k1 विल बी पॉजिटिव, और फिर k2 है तो यहाँ पे k2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई मेरी? नेगेटिव. f of k1 पॉजिटिव, f of k2 नेगेटिव. फिर से प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? नेगेटिव. तो सेम कंडीशन दोनों में अप्लाई होगी. नाउ ऑब्जर्व वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसमें ना दोनों केसेस में दोनों कंडीशन सेम है. जैसे देखो a पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड ओपन कर रहा है, तो हमारे पास एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन कि d पॉजिटिव एंड f of k1 f of k2 का प्रोडक्ट नेगेटिव. सेम कंडीशन यहाँ पे आई है कि d इज पॉजिटिव. जब सेकेंड केस कौन सा ले रहे थे? a नेगेटिव है और पैराबोलास हमारे डाउनवर्ड ओपन कर रहे हैं, तो d पॉजिटिव है बेटा, और f of k1 f of k2 क्या है? नेगेटिव. तो कंबाइंड कंडीशन सेम ही है. ऑलराइट, सो दीज आर द 5 केसेस, ऑलराइट, ऑफ लोकेशन ऑफ रियल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट, तो लॉजिकली अगर आप ग्राफ बना लेते हो और a पॉजिटिव है अपवर्ड बनाओ, a नेगेटिव है डाउनवर्ड बनाओ, ये चेक कर लो पहले कि जो केस हम कर रहे हैं उसमें रूट्स इक्वल पॉसिबल हैं या डिस्टिंक्ट ही होंगे खाली, वो चेक कर लो. और फिर नंबर्स हम k, k1, k2 की बात कर रहे हैं, जो केस है उनको लोकेट करो वहां पे एक्स एक्सिस पे
and you can automatically write the conditions yourself. All right? तो समझ के लिखो conditions, एक दो बारी लिखोगे you will get the hang of it, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हो. अगर आप इसको क्रैम करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से 10 केसेस है ना, 5 केसेस किए हो, हर एक के 2 पार्ट्स हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव. सो इफ यू ट्राई टू क्रैम दीज 10 केसेस it will get confusing. All right, you might get confused in your competition exams while solving questions. तो क्वेश्चन से याद आया, क्वेश्चन करते हैं ना इसके ऊपर. तो लेट मी टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है. The set of all real values of lambda for which this quadratic equation always have exactly one root in the interval 0 to 1. तो खाली एक रूट है हमारा 0 से 1 के बीच में. तो क्वेश्चन किसके ऊपर हो गया? लोकेशन ऑफ रियल रूट्स के ऊपर हो गया ना बेटा. तो करते हैं इसको. ऑलराइट, सो लेट अस राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस. एज यू कैन सी दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020. ठीक है ना, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का है. तो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. आई हैव लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. तो हमें क्या चाहिए? रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा की एग्जैक्टली 1 रूट. कंडीशन क्या है? कि एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 to 1. आप देख रहे हो ये हमारा केस 5 हो गया कि सिर्फ एक रूट लाई कर रहा है दो नंबर्स 0 और 1 के बीच में. सबसे पहले आपने ये देखना है पैराबोला अपवर्ड ओपन करेगा या डाउनवर्ड. पहली चीज यही है ना. तो अब देखो, मान लो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने क्या कंडीशंस लिखी थी. आई डू नॉट रिमेंबर, लेकिन मुझे मेथड का आइडिया है, तो आई कैन राइट द कंडीशंस माई सेल्फ. नाउ लुक हियर इन दिस इक्वेशन, एज यू कैन सी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1. लैम्डा आपका रियल है, वो दिया हुआ है. तो अगर लैम्डा रियल है हमारा, लैम्डा इज रियल, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, दैट मींस वी विल हैव अपवर्ड पैराबोला. ठीक है, पहली कंडीशन हमें ये पता चाहिए कि पैराबोला अपवर्ड होगा, और फिर एक रूट लाई करता है 0 से 1 के बीच में. तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ हियर. ठीक है, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, कि एक रूट लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में. तो आई हैव दिस एज 0 और यहाँ पे 1 है, और पैराबोला अपवर्ड है. एक चीज आप और नोटिस कर सकते हो, जैसे मान लो ये जो लेफ्ट साइड पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको अगर हम fx बोल रहे हैं, तो लेट fx बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 4 लैम्डा एक्स एंड प्लस 2. तो एक आप आइडिया ले सकते हो कि 0 की बात हो रही है ना, जैसे, तो देखो जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2. तो हमें एक आइडिया लग गया कि 0 पे वैल्यू 2 है, और एक रूट 0 के 1 के बीच में है, तो इसका मतलब पैराबोला 0 से 1 के बीच में एक्स एक्सिस को कट करेगा. और क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला हमारा अपवर्ड है. इतनी इंफॉर्मेशन है. तो लेट अस ड्रॉ द पैराबोला. अब देखो पैराबोला कुछ ऐसे आना चाहिए ना, और एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, सॉरी एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, तो आई हैव टू टेक सेकेंड रूट आफ्टर 1. तो इस तरह से बनाना पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट पहले मैंने दोनों रूट्स ले लिए थे 0 से 1 के बीच में. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो पहले की तरह नहीं, ऐसे बनेगा. अब हम कंडीशंस लिखते हैं. अब पहली कंडीशन क्या थी एग्जैक्टली 1 रूट वाले में, कि रूट्स बेटा इक्वल नहीं हो सकते ना. तो पहली कंडीशन हमारी हो गई कि d विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. लेट अस सॉल्व दिस. डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लो. तो लेट अस राइट द डिस्क्रिमिनेंट नाउ. तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 4 4s are 16 lambda square minus 4 2s are 8 times lambda square plus 1 should be greater than 0. Let us solve this inequality. सबसे पहले आप देखो, we can divide it by 8. Let us divide by 8. So we are getting 2 lambda square minus lambda square minus 1 is greater than 0. So I have lambda square minus 1 to be positive. Quadratic inequality है. We know how to solve it. What we can do? Factorize. So I have lambda plus 1
into lambda minus 1 greater than 0. What are the two roots? Minus 1 and 1. So on the number line, we are going to take minus 1 and 1. फिर क्या है देखो, ब्लैंक सर्कल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. गॉट इट? तो हमारे पास वी हैव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ऑलराइट, ये. सो लेट अस सी. दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 1. नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं. देखो, तो दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 1. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ब्लैंक सर्कल्स आएंगे क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. देखो, ऑलराइट, आई हैव ब्लैंक सर्कल. ये वाला हो गया और ये हो गया. और देखो, इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन 0. तो प्लस वाला रीजन लेना होता है. तो या तो लैम्डा विल बी बिफोर माइनस 1 और लैम्डा विल बी आफ्टर. तो दैट मीन्स वी कैन राइट आइदर लैम्डा इज लेस देन माइनस 1 और लैम्डा इज ग्रेटर देन ये आ गया. तो पहली कंडीशन से हमें ये सोल्यूशन मिला. अब दूसरी कंडीशन देखो, एग्जैक्टली वन रूट वाली. आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे 0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 पे, क्योंकि हमारे पास ये रूट है अल्फा और ये रूट है बीटा, तो 1 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है. और आप ऑब्जर्व करो, अल्फा बीटा के बीच में जब ग्राफ है बेटा, तो वो पूरे का पूरा बिलो एक्स एक्सिस है. तो दैट मीन्स 1 पे आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. तो 0 पे पॉजिटिव, 1 पे नेगेटिव. दैट मीन्स वी कैन से, सेकेंड कंडीशन हम लिखते थे ना इसमें कि f of k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव. तो k1 क्या है? 0, क्योंकि रूट्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं. तो हमारा 0 एक तरह से k1 है और 1 क्या है बेटा? k2. तो सेकेंड कंडीशन वुड बी दैट f of 0 इंटू एफ ऑफ 1 वुड बी नेगेटिव. 0 पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी? 2. अब f of 1 चाहिए. लेट मी राइट f of x फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा क्या था देखो, इट वॉज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर देन माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2, ये था. तो अगर f of 1 चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा? जहां पे x है उसके बदले में 1 लोगे. तो लेट अस टेक 1. तो आई हैव 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 would be negative, right? Let us divide this by 2. It is a positive quantity, so sign of inequality will remain same. तो मेरे पास आ गया lambda square minus 4 lambda plus 3 is less than 0. Is it okay? इसको factorize करते हैं. तो I have lambda minus 1 into lambda minus 3 less than 0. यही आएगा ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके. अब देखो क्या क्या रूट्स आ गए, 1 और 3. तो वी यूज इनइक्वालिटीज इन ईच एंड एवरी कंडीशन. ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज व्हिच वी हैड डन अर्लियर. तो नंबर लाइन पे लेते हैं 1 और 3. अब देखो क्या करना है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ले लो. लेस देन 0 है ना, ये देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. फिर हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. और लेस देन 0 है तो कौन सा रीजन लोगे? -1. So that means I am getting that lambda lie कर रहा है 1 से लेकर 3, right? तो exactly 1 रूट वाले में याद है 2 ही कंडीशंस होती हैं, वर्टेक्स का कोई लेना देना नहीं है. Now let me combine these 2 conditions. पहली कंडीशन मेरी ये है कि lambda is less than -1 या lambda 1 से बड़ा है, और दूसरी कंडीशन है कि lambda 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है. तो let us now take common solution. तो यहाँ पे हम लेंगे इसका अब कॉमन सॉल्यूशन. सो लेट अस टेक नाउ कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है ना, इनइक्वालिटीज में हमने बहुत सारी करी. अब देखो नंबर लाइन के ऊपर -1 1 एंड देन 3. फर्स्ट कंडीशन क्या थी? या तो लैम्डा स्ट्रिक्टली लेस देन -1 था या ग्रेटर देन. सेकेंड कंडीशन क्या है? लैम्डा इज लाइंग फ्रॉम 1. अब कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जिसके ऊपर डबल लाइन आ जाए. किसके ऊपर डबल लाइन आ रही है? देखो 1 से 3, ये वाला पार्ट कॉमन है. ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया कि लैम्डा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 2 3. इज इट ओके? सो दिस इज द कंडीशन राइट नाउ व्हिच वी आर गेटिंग ऑन लैम्डा, कि लैम्डा 1 से 3 तक है.
लेट अस चेक द ऑप्शंस। अब देखो हमारे पास लैम्डा क्या है, 1 2 3 था ना। अब आप यहाँ पे देखो 1 से 3 है तो 0 से 2 तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट। -3 से -1 भी नहीं हो सकता क्योंकि हम तो बोल रहे हैं लैम्डा 1 से 3 के बीच में है, तो ये इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 to 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि 3 के आगे तो जाना ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो जरा डी कंडीशन, डी ऑप्शन, हमारा लैम्डा 1 2 3 था, पर हमने जो आंसर निकाला है वो ओपन इंटरवल 1 2 3 निकाला है। इस ऑप्शन में आप देख रहे हो क्लोज्ड इंटरवल है 3 पे, तो 3 इंक्लूडेड है। तो जब आपके पास ऐसा हो जाए कि आपके पास ओपन इंटरवल आ रहा है, आपको क्लोज दिया हुआ है, कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली लैम्डा 3 भी होना चाहिए, पर हम उसको चेक करेंगे। इस गिवन इक्वेशन में लेट अस सी व्हाट हैपेंस अगर लैम्डा 3 है और क्या रूट्स आ रहे हैं, क्या उसका एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है 0 से 1 में या नहीं। सो लेट अस चेक दैट, ऑलराइट। तो लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन। तो मेरे पास देखो इक्वेशन ये थी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, और फिर था हमारे पास -4 लैम्डा एक्स एंड +2 इक्वल टू 0। वी वांट टू चेक कि लैम्डा 3 है तो क्या एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, तो पुट करते हैं लैम्डा को 3 3 3 9 प्लस 1, इक्वेशन बन गई 10x स्क्वायर -3 4 12x, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमने 3 ली है ना, तो यस 12x एंड +2 इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो पहले, तो हमारे पास क्या आ गया, 5x स्क्वायर -6x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म, 5x स्क्वायर -5x -x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, 5x, व्हाट इज लेफ्ट, x -1, take -1 common, we have x -1 equal to 0. Let us factorize x -1 into 5x -1 is 0. तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, देखो 1 और 1/5। अब पता है ये लैम्डा 3 क्यों आ रहा था, हमने ये वाला ग्राफ बनाया था ना, देखो जब हमें कहा था कि एग्जैक्टली एक रूट लाई करता है 0 से 1 के बीच में, तो हमने ये रूट ले लिया था अल्फा, बीटा हमने 1 के बाद लिया। अब आप देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, लेट मी शो यू बाय मेकिंग अ ग्राफ सो दैट इट इज क्लियर टू यू। यहां पे जैसे हमारा ये 0 था, आपको याद होगा 0 पे वैल्यू 2 थी, तो 0 तो रूट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1 है। एक रूट हमारा ये देखो 1/5 यहाँ पे कहीं आएगा, तो एक रूट बेटा ये हो गया, और इस केस में ना दूसरा रूट 1 है। तो पैराबोला कुछ ऐसे है, दोनों रूट्स 0 से 1 के बीच में नहीं है, एग्जैक्टली एक है, लेकिन वो जो दूसरा रूट है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। हमने क्या लिया था, दूसरा रूट 1 से देखो आगे लिया था ना, जब हमें कहा था कि एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है अल्फा बीटा के बीच में, ये देखो यहाँ पे हमने बीटा को 1 के बाद लिया, ठीक है। 0 तो रूट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो दूसरा रूट 1 हो सकता है। अगर दूसरा रूट 1 है और पहला रूट 1/5 है, तो भी एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 0 to 1 ओपन इंटरवल, सो लैम्डा इक्वल टू 3 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें इन कंडीशंस को, सो वी गेट कि लैम्डा हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया कि लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 और 3 पे क्लोज्ड। 1 पे क्लोज नहीं आएगा क्योंकि 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, कितनी है 2। ओके, सो ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है इंपॉर्टेंट कि हमारा इंटरवल तो ओपन इंटरवल आ रहा था, पर ऑप्शन में क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ था, तो हमने चेक कर लिया और रीजन भी देख लिया कि लैम्डा 3 पॉसिबल है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज 100% करेक्ट, राइट। सो आज हमने लोकेशन ऑफ रियल रूट्स किया क्योंकि बेटा इसका थ्योरी पार्ट ज्यादा है, 5 केसेस थे, उसमें भी 2 आगे सब केसेस थे, तो we have not done too many questions. We were able to do just 1 question in today's lecture. In next lecture, we'll be doing some more questions on location of real roots and do the remaining part also of quadratic equations. All right.
That is all for today in this lecture. Alright. I hope you will enjoy the benefit of our courses. And rest we will continue in the next one. Thank you and bye-bye.